हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to discuss a very important topic of our CA final syllabus, that is equalization levy. ये पर्टिकुलर चैप्टर जब आप मॉड्यूल में देखते हैं तो इट is not a very lengthy chapter, but it has become quite important since the last attempts, and it requires us to pay attention to the very minute and basic details that have been given in these provisions. So in this video, we'll be revising the whole equalization levy and we'll be focusing on the concepts जो आपको examination में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा important है. Also, we'll be discussing that how equalization levy is different from the other provisions of Income Tax Act. So let us start. Now, before beginning, we'll first discuss about what exactly is equalization levy. The main thing that we need to understand is that what is the basic concept of equalization levy. आप लोगों ने काफी सारे प्रोविजंस पढ़े हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से रिलेटेड, जो आपका मॉड्यूल 4 है. दैट फुल मॉड्यूल टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन, एंड देयर आर आल्सो lots of provisions which are chargeable to tax in India, in where income of a non-resident is chargeable to tax in India, right? मतलब हम लोग काफी सारे ऐसे sections जानते हैं already, by virtue of which a non-resident person is liable to pay income tax in India under the Income Tax Act. Also considering the DTAA, we calculate that whichever is beneficial and accordingly we tax the income in India. This we all very well know, right? So basically, there are provisions by which income of a non-resident is chargeable to tax in India. Then what is an equalization levy and what was the need of starting this equalization levy is very important for us to first understand. आपको एग्जामिनेशन में पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, and also practically this has become very much relevant nowadays with the increase in online transactions and globalization of markets. So we need to understand the concept very well. So what was the main problem and what is the issue why equalization levy has been brought into place? That whenever you talk about e-commerce transactions, it is very difficult to know that whether these particular transactions are falling within the ambit of India or not. मतलब आपने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी, ई कॉमर्स आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई भी नेचर का आपने सर्विसेज लिया ऑनलाइन और आपने उसको एक्सरसाइज किया, सो उस पर्टिकुलर केस में उस नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पता करना प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा मुश्किल है. बिकॉज whenever there are international transactions, it is difficult कि कैसे कहाँ से कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, कहाँ पर लोकेशन है, उस व्यक्ति का लोकेशन कहाँ है, सर्विसेज कहाँ दी गई, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स basically give a challenge of taxing these online transactions or e-commerce transactions basically. So OECD ने कुछ recommendations दिए कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है, and obviously this problem is faced by a lot of countries, not only India. So they have given a solution to this particular problem, and then based on that, India has brought in the concept of equalization levy. So we'll just in short talk about that what are the OECD recommendations under the action plan 1. Okay, so the first action plan gave 3 different options, like broadly 3 options. The first, they had brought in a new rule of significant economic presence, which we already talk about in section 9. हम लोग जब section 9 पढ़ते हैं, deemed to accrue arise in India business connection, वहां पर आपको business connection में एक significant economic presence का भी concept दिया है, right? So ये पहली चीज उन्होंने बोली कि ये एक तरीका हो सकता है कि हम अगर उसका इंडिया में significant presence है किसी भी व्यक्ति का, though it is not physical presence, but it is, if say for example online presence, then you can calculate, consider it as a business connection in India, though he is not having a fixed place of business. So this was a first you can say option that had been given. Withholding tax can be applied to certain types of digital transactions कि आप TDS लगाओ, and equalization levy can be charged on this disparity, क्योंकि वही चीज अगर कोई
मतलब एक नॉन रेसिडेंट करे या एक डोमेस्टिक बिजनेस वाला करे तो ऑब्वियसली उसके हाथ में तो टैक्सेबल है, लेकिन वही इनकम अगर इंडिया से ही या थ्रू ई कॉमर्स कोई फॉरेन एंटरप्राइज कमा रहा है तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ रहा। ये डिस्पैरिटी को इक्वलाइज करने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इक्वलाइजेशन लेवी। ये फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स को एट पार लेके आ रहा है, इक्वलाइज कर रहा है, ठीक है। सो ये चीजें बताई गई कि तीनों में से आप कोई भी चीज ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें आपको चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें भी आएंगी, बट दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज एंड दिस विल हेल्प टू टैकल आर प्रॉब्लम्स। जो हमको दिक्कत आ रही थी फिजिकल प्रेजेंस वाली, वो हमारी प्रॉब्लम टैकल करने में भी हमको इसमें हेल्प मिलेगा। सो अल्टीमेटली थिंकिंग अबाउट इट, इन फाइनेंस एक्ट 2016 इंडिया in like first time introduced the concept of equalization levy. Now very first thing which we need to understand at the very onset of equalization levy, that equalization levy is not TDS। जैसे ऊपर भी आप देखोगे तो दो अलग अलग बातें बोली है, विथ होल्डिंग टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग, इक्वलाइजेशन लेवी इज अ डिफरेंट थिंग। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड, ये मैंने नोट करा है, जब भी मैं नॉर्मल भी लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ तो इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ करके वो ऐसा ही लगता है कि टीडीएस जैसा ही तो है, बट it is not TDS. So first thing which you need to understand is equalization levy is a specific, a different kind of, you can say, tax or a levy which has been imposed by the government. It is not TDS. It is not a tax deducted at source, or basically it's not a tax that is being levied as a withholding tax. So first thing which we need to understand. जब हम सेक्शन 195 की बात करते हैं, मतलब हमारा टीडीएस ऑन नॉन रेसिडेंट्स, that is an altogether different thing, and equalization levy is an altogether different thing. Okay, so first and the foremost thing which we need to understand. So let us first discuss क्या बोला गया। इक्वलाइजेशन लेवी को इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस एक्ट 2016 में। नाउ फाइनेंस एक्ट 2016 में जब इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया है, तब 165 जो सेक्शन है, वो 165 सेक्शन इज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। So basically there are two categories of services on which equalization levy is applicable, one which was brought in 2016 and the another one which was brought into 2020. तो अभी at present दो ऐसी major categories of services जिस पे equalization levy लग रहा है। जिन सर्विसेज पर इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट के बाहर हैं। इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम लिखते हैं आंसर्स तब ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे सेक्शन 165, सेक्शन 165 ए इज ऑफ द फाइनेंस एक्ट, नॉट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोल के देखोगे आपको 165 में ये नहीं मिलेगा, इक्वलाइजेशन लेवी की कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स एक्ट से बाहर रखने का सबसे मेन रीजन ये है दैट इफ वी इंक्लूड इट एज ए type of tax in income tax act, then it will be subjected to the all the regular benefits। तो मतलब जैसे नॉर्मली होता क्या है, जब कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर आप उसको इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो और अगर वो इनकम इंडिया में डीम टू बी चार्जेबल टू टैक्स है, लेट अस से सेक्शन 9 की वजह से, तो आप फिर क्या देखते हो, आप ट्रीटी देखते हो, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो नॉर्मली ये होता है कि ट्रीटी के चलते किसी ना किसी कंट्री में उसको क्या मिल जाती है, रिलीफ। इक्वलाइजेशन लेवी को अगर आप फिर से इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बना देंगे तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा कि यू विल कम इनटू द रेगुलर प्रोविजंस, then you will check the treaty provisions, then you will get treaty benefits, and then ultimately you are again out of the tax purview. So that is not the intention। नहीं तो इक्वलाइजेशन लेवी लाने का मतलब ही खत्म हो गया। So one very important point to be kept in mind, इक्वलाइजेशन लेवी का ट्रीटी एक्ट जो हमारे रेगुलर प्रोविजंस है उनसे कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ दो अलग सेक्शंस है और इनके पूरे प्रोविजंस जो है वो अलग चलेंगे। इनका आपके नॉर्मल टैक्स डिडक्शन या आपके जो नॉर्मल DTAA के बेनिफिट्स प्रोविजंस, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, दैट ये बहुत बार हम लोगों को नहीं, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी में बस दोनों सेक्शंस पढ़ लिए कि हाँ इस पे 6% लगेगा, इस पे 2% लगेगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इक्वलाइजेशन लेवी थ्रू द फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने उसको डाला ही नहीं,
ठीक है, is to deny the tax treaty benefits. Otherwise, it will defeat the entire purpose of introducing the equalization levy. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि it is not the nature of an income tax. It is not an इनकम टैक्स, इट इज जस्ट एन इक्वलाइजेशन लेवी कि हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं तो आपको भी इस पे टैक्स देना पड़ेगा ताकि हम बराबरी पे आओ, इक्वलाइज करने के लिए, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलिए, सो यहाँ पर हाउएवर अगर कोई चीज जो कि नॉर्मल आपके जो हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी वगैरह में आती है, तब फिर वहां पर आपका जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो वगैरह वो सब कुछ नहीं लगेगा, आपके नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे बाकी एनआर टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं वो एज इट इज इंटैक्ट है, तो अगर वो अप्लाई हो रहे हैं, एफटीएस वगैरह, रॉयल्टी फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी, देन आप इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं करते हो, है ना। सो यहाँ पर हमने समझा इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया, एंड जस्ट अ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्ट लेट अस take a quick review of which services are covered under equalization levy. So basically there are two sections, 165 and 165A. 165 of the Finance Act 2016 talks about equalization levy on specified services, 6% of amount of consideration received or receivable by a non-resident not having a PE in India. Non-resident not having a PE in India or providing services not effectively connected with his PE in India. अब इसमें क्या होता है, अगेन टॉकिंग अबाउट द रेगुलर सिनेरियो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि बिजनेस इनकम कमा रहा है इंडिया में, इन मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज this point has been understood. We have also discussed this when we have discussed the chapter DTAA कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, बिजनेस इनकम कमा रहा है, लेकिन उसका पीई इंडिया में नहीं है, तो बिजनेस प्रॉफिट्स को टैक्सेबल नहीं किया जाता है। करेक्ट, ये हम सब जानते हैं। वहीं पर इक्वलाइजेशन लेवी उन्होंने किस पे लगाया है, देखो, जिसको रिसीव हो रहा है, किसको पैसा रिसीव हो रहा है, नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग अ पीई इन इंडिया और प्रोवाइडिंग सर्विसेज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद दिस पी, क्योंकि अगर पी होगा तो फिर नॉर्मली ही आपका इनकम टैक्स लग ही रहा है। ये वो वाले केसेस हो गए जो इनकम टैक्स के बाहर हो गए, है ना। तो नॉट हैविंग पीई इन इंडिया or providing services not effectively connected with his PE in India from a resident carrying on business और अ नॉन रेसिडेंट हैविंग अ पीई। तो अगर दो नॉन रेसिडेंट्स आपस में टैक्स ट्रांजैक्शन करें तो भी इक्वलाइजेशन लेवी लग सकती है। तो पहली वाली जो है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज पर है 6%। स्पेसिफाइड सर्विसेज मतलब क्या है, तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज को यहाँ पर कवर किया। ये 165 की बात हो रही है। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं, ऑल दीज services notified by the government will be covered under the first case, that is chargeable at the rate 6%. तो किसको डिडक्ट करनी है, मतलब बेसिकली किसको चार्ज करनी है इक्वलाइजेशन लेवी, जो व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, नॉन रेसिडेंट से उसने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सर्विसेज लिए हैं ऑनलाइन, तो उसके पेमेंट के समय पर उसको उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगाना है। या फिर एक नॉन रेसिडेंट ने सर्विसेज ली है जिसका इंडिया में पीई है, तो फिर उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी 165 एप्लीकेबल होगा। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनआर will if exceeds 1 lakh then only this particular provision shall be applicable. So एक monetary limit दे दी उन्होंने। तो फर्स्ट थिंग तो ये सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस पे लगेगा। मतलब क्या बोला है कि इधर अगर कोई इंडिविजुअल है जो बिजनेस नहीं कर रहा है, उसने कुछ पर्सनल पर्पसेस के लिए लिया है, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख से एक्सीड करता है तो ही ये अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है उन्होंने कि इसके ऊपर के अमाउंट पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे नहीं करना है। EL 6% is deductible from consideration paid or payable for specified services again by a resident carrying on business or a non-resident having PE in India. जब आप डिडक्ट करते हैं तो आपको उसके नेक्स्ट मंथ के 7th तक आपको गवर्नमेंट को उस अमाउंट को पे कर देना है। अगर आप डिडक्ट नहीं भी करते हो तो भी आपको पे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट इवन इफ देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट यू फेल टू डिडक्ट, then also you have to pay that amount to the government up to the next like 7th of the next month.
इफ यू फेल, लाइक द ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड, अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो, डिले होता है, तो इंटरेस्ट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑल्सो पेनल्टी कैन बी अट्रैक्टेड 1,000 per day maximum up to the equalization levy. So this is the first one, that is 165. Talking about 165A, the second services which are eligible, or you can say which are covered under the provisions of equalization levy are 165A, that is e-commerce supply. यहाँ पर रेट 2% है. अब देखो किस पे लग रहा है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो बाहर है इंडिया के, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर who owns, manages or any facility or platform for online sale of goods or services, और किसको दिया जा रहा है ये सप्लाई, मतलब उसका प्लेटफॉर्म है, ही इज नॉट द सेलर. व्हेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, यहाँ पर ये खुद ही सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन यहाँ पर वो सर्विस को फैसिलिटेट करने की सर्विस दे रहा है, मतलब उसके गुड्स हो जरूरी नहीं है. who owns, operates, manages digital facility for online sale of goods. So it is practically possible कि मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ जो कि नॉन रेसिडेंट हूँ, मेरा एक प्लेटफॉर्म इंडिया में चल रहा है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बट मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे. ओके, गेट दैट डिफरेंस. सो ई कॉमर्स ऑपरेटर हु फैसिलिटेट्स सप्लाई किसको, टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. पहले हम ये वाला पॉइंट देखेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, मैंने मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स फैसिलिटेट करी है, किसको सेल हुआ है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सेल हुआ है, या फिर पर्सन हु बाइज सच गुड्स और सर्विसेज यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया. ओके, तो भी आपका ये ई कॉमर्स आपका इक्वलाइजेशन लेवी में आ जाएगा. अब एनआर टू एनआर हो रहा है, अगर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो भी एनआर है, और जो व्यक्ति खरीद रहा है सामान, इसके थ्रू जो सेल हो रहा है वो भी एनआर है, तो भी इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्ट हो सकती है, अगर ये जो एनआर है, दिस पर्टिकुलर एनआर is basically using those services for sale of advertisement targeting a customer resident in India, or who accesses the advertisement through IPA located in India. आ रही है बात समझ में? तो एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट के पोर्टल को यूज करके एक एडवर्टाइजमेंट रन करी जो कि टारगेट कर रही है कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया, या फिर जो एक्सेस हो रहा है थ्रू आईपी लोकेटेड इन इंडिया, तो भी वो भले ही नॉन रेसिडेंट है, इक्वलाइजेशन लेवी विल बी अट्रैक्टेड. एंड सेल ऑफ डेटा collected from a person resident in India who uses IP address located in India. तो ये दोनों ही केसेस में भले ही फिर ये सर्विसेज किसी नॉन रेसिडेंट ने लिए हैं, that becomes covered under the equalization levy. Does the e-commerce operator have PE in India? Again, यहाँ पर भी वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर PE है इंडिया में तो फिर आपकी इक्वलाइजेशन लेवी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. यहाँ पर भी वही है, देखो किसको लग रहा है, जो कि नॉट हैविंग अ पीई है. सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वो चीज का ध्यान रखना रहेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर पीई इंडिया में है तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस, और वो जो सर्विसेज है वो उस पीई से रिलेटेड है, तो फिर आपका ईएल अट्रैक्ट नहीं होगा, अदरवाइज आपका ईएल अट्रैक्ट होगा. However, there are certain conditions of non-chargeability that the receipts are 2 crore or more, then only equalization levy shall be applicable. तो e-commerce operator का जो from the e-commerce services which has been supplied by that e-commerce operator is 2 crore or more, then only this particular provision shall be applicable, otherwise not. And also equalization levy shall be paid in this case quarterly. यहाँ पर आपको मंथली नहीं करना है, पेमेंट करना है. अगर आप फेल नहीं, मतलब अगर आप नहीं पे करते हैं तो देन आपको अगेन यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट पे करना है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑल्सो पेनल्टी शैल बी अट्रैक्टेड अमाउंट इक्वल टू द इक्वलाइजेशन levy. So these are the two major services which are covered under the equalization levy. जो सर्विसेज इक्वलाइजेशन लेवी में कवर हो गई हैं उसको उन्होंने स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया है. Section 1050 of Income Tax Act, if you go through the Section 1050 of Income Tax Act, then they have clearly written in there कि अगर इसके ऊपर आपका इक्वलाइजेशन लेवी लग चुका है
तो फिर आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहोगे। तो अभी तक दो चीजें समझो, इक्वलाइजेशन लेवी आपके ऊपर चार्ज हुआ, इक्वलाइजेशन लेवी अगर आपके ऊपर लगा है तो ये इनकम टैक्स से जो है वो पूरी तरीके से बाहर है। आपके जो दोनों सेक्शन है 165 और 165A, ये फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है। क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट से बाहर है, इस पे आपको कोई ट्रीटी बेनिफिट या जो बाकी सारे केसेस में मिल जाता है वो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब पे करना ही है। इफ यू आर कवर्ड अंडर 165 or 165A, then if your service is covered under that, and if you have been charged under for equalization levy, then that particular income shall be clearly exempt। तो फिर आपको चेक ही नहीं करना है कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे नहीं लगेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब वो टैक्स से फिर से उन्होंने उसको बाहर कर दिया है ना, डबल डबल टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। जो हमारे रेगुलर इनकम्स थी, रॉयल्टी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, सॉरी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह, वो इक्वलाइजेशन लेवी से बाहर है। क्योंकि वो इक्वलाइजेशन लेवी से बाहर है, that automatically becomes taxable as per the regular provisions and becomes out of the purview of 1050। तो यहाँ पर फिर से आपको वही चीज लिखी है, income arising from providing services and income arising from any e-commerce supply would not include any income which is taxable as royalty or fees for technical services in India under the Income Tax Act read with the DTAA notified by the central government। तो अगर वो रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आ रहा है तो वो इक्वलाइजेशन लेवी से बाहर है, तो ऑटोमेटिकली 1050 से भी बाहर है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी। बेसिकली आपको मैंने ये समझाया इक्वलाइजेशन लेवी क्यों है, क्या उसके पीछे मेन पर्पस था। एंड देन वी डिस्कस दैट व्हाट विल बी द एप्लीकेबिलिटी, एक्चुअली चार्ज कैसे होगा, ये टीडीएस से कैसे अलग है, ये आपके रेगुलर प्रोविजन से कैसे अलग है, and what are the major services covered under the provisions of equalization levy। Now, in order to ensure कि ये compliance हो रहा है, like similarly we do in TDS, if you are liable to deduct tax and fail to deduct tax, similarly equalization levy के भी केस में आपके expense को disallow किया जाएगा। So 40A(IB) clearly states that if you are required to deduct tax, like there is a transaction, if you have paid a consideration on which equalization levy is deductible, and such levy has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date under section 139(1), then such expenses incurred towards the consideration shall not be allowed as deduction। However, आगे चल करके जब आप उसको डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दोगे, so then in the next year you will be able to claim the deduction under in your income tax return, that is you can claim that expense as a deduction when you have fulfilled the condition। Now one more important point which is to be kept in mind here is that disallowance would be attracted only in the case of specified services where the onus is on the service recipient to deduct the equalization levy। दो केसेस पढ़े हमने, है ना। तो एक था स्पेसिफाइड सर्विसेज जो 6% है, और जो ई कॉमर्स वाला है वो 2% है। ई कॉमर्स वाले में डिडक्शन की जो लाइबिलिटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर है, ही इज नॉट द एक्चुअल सर्विस रेसिपिएंट, राइट। तो इसने अगर डिफॉल्ट किया तो एक्सपेंस दूसरे किसी का क्यों अफेक्ट होना चाहिए, गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो प्रोविजन है, मतलब ये जो डिसअलावेंस वाला प्रोविजन है, ये सिर्फ किस पर लग रहा है, ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। ये दो छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो 165 और 165A की, यहाँ पर इन्होंने बोला है फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, और यहाँ पर इन्होंने बोला है फॉर ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सो 6% वाले पर ही ये वाला डिसअलावेंस अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड हम लोगों ने 194O भी पढ़ा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो रिवाइज दैट सेक्शन। बट अगेन 194O is a part of Income Tax Act, see the clear distinction they have done, but we sometimes tend to ignore this, and this topic was very important to be discussed separately। I have given you a, you can say, a revision kind of thing for the whole equalization levy concept। So whenever you are solving the questions of equalization levy, be very clear in your mind कब लगेगा कब नहीं लगेगा। जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा तो फिर क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, तो आप नॉर्मल इनकम टैक्स में आ जाओगे। फिर आप नॉर्मल आपका सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन, डीम टू अक्रोराइज इन इंडिया, नॉर्मल टीडीएस प्रोविजंस, डीटीएए, all those will be applicable। But if equalization levy is being applied, then these become a separate part apart from the income tax act।
So go through these provisions, try to solve the questions, and in case of any doubts, feel free to discuss.